Hello everyone and welcome to the course Water Resource Engineering and Hydrology. Myself Preeti Singh Patel, Civil Department from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Today's topic is hydrological parameters part 2. Okay. So in previous video we already studied about hydrological cycle and different parameter of hydrological cycle like precipitation, evaporation, runoff, types of runoff. Okay, so in today's lecture we will going to start how to measurement the rainfall and what are the instrument used for measuring the rainfall and how to calculate the rainfall data and the missing rainfall data and how to represent the rainfall. Okay, so let's start. First is measurement of precipitation. So precipitation is measured in terms of depth of water that would accumulate on a level surface if the precipitation remained where it fall. Okay, so a variety of instruments have been developed for measuring precipitation or precipitation rate are known as precipitation gauge or simply rain gauge. Okay, and these rain gauge are classified into a two category, recording rain gauge and non-recording gauge. Okay, so in प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, तो फिर से रिवाइज करते हैं. प्रेसिपिटेशन इज द फॉइलिंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म लाइक रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, स्लीट, ग्लेस एक्सेट्रा इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. ओके, प्रेसिपिटेशन क्या है? आपको मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है किसी भी फॉर्म में, हम उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ओके, और जो प्रेसिपिटेशन है उसको हम डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म्स में मेज़र करते हैं, यानी आपका सरफेस पे कितना डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर हुआ. ओके, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन. जो डेप्थ ऑफ वाटर यानी प्रेसिपिटेशन को जो हम मेज़र करते हैं वो आपका सेंटीमीटर, इंचेस और एमएम में भी हो सकता है. और द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द प्रेसिपिटेशन इज़ नोन एज रेन गेज और प्रेसिपिटेशन गेज. ओके, यानी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं रेनफॉल को मेज़र करने के, यानी डेप्थ ऑफ वाटर मेज़र करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेन गेज. आपका रेन गेज दो कैटेगरी में डिवाइड है, नॉन रिकॉर्डिंग गेज एंड रिकॉर्डिंग गेज. सो नॉन रिकॉर्डिंग गेज वी हैव टू टेक द रीडिंग. ओके, इसमें क्या है, आपका नॉन रिकॉर्डिंग गेज में आपको मैनुअल रीडिंग नोट डाउन करनी पड़ती है, मगर रिकॉर्डिंग गेज क्या है आपका ऑटोमेटिक, जहाँ पे आपको डेटा डायरेक्टली आपका रेनफॉल कितना हुआ और वो डेप्थ आपको डायरेक्टली दे देता है. ओके, सो नॉन रिकॉर्डिंग गेज इन क्लासीफाइड इनटू टू सब कैटेगरी, साइमन और साइफन एंड IMD. एंड रिकॉर्डिंग गेज इज क्लासीफाइड इनटू अ थ्री कैटेगरी, वेटनिंग बकेट टाइप, टेपिंग बकेट टाइप एंड फ्लोट टाइप. So let's start with non-recording rain gauge. So the non-recording rain gauge used in India in the Simon rain gauge. It consists of funnel with a circular rim of 12.7 centimeter diameter and a glass bottle. So you can see from this figure there is a circular rim. Okay, and the diameter of the rim is 12.7 or 12.5 centimeter and a glass bottle as a receiver. So this is your glass bottle. So the cylindrical metal casing, this metal casing is fixed vertical to the masonry foundation with the level rim of 30.5 centimeter above the ground surface. Okay, the rain falling into the funnel and collected to this glass bottle or a receiver. Then when the bottle is filled, हम क्या करते हैं, जो हमारा जितना भी पानी इसमें ग्लास बॉटल में फिल होता है, एक ऑलरेडी ग्रेजुएटेड मेजरिंग ग्लास में उस वाटर को ट्रांसफ़र करके नोट डाउन करते हैं कि हमारा कितना प्रेसिपिटेशन हुआ. ओके, next, recording rain gauge. So recording rain gauge automatically record the intensity of rainfall and the time and its occurrence in the form of trace or a graph marked on a graph paper wrapped around a revolving rod. Okay, मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या है, आपके ऑटोमेटिक
ओके, मीन्स ये आपका ऑटोमेटिकली आपकी कितना रेनफॉल की इंटेंसिटी वर्सेस टाइम आपको एक ग्राफ फॉर्म में देता है। हमें मैनुअली वहाँ पे जाके रीडिंग नोट डाउन नहीं करना है, जैसा हमने साइमन रेन गेज और आईएमडी रेन गेज में करना है कि आपका कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, यानी डेप्थ ऑफ वाटर मेजर करने के लिए हमारा जो रिसीवर है उसमें जो वाटर है उसको मेजरिंग ग्लास में ट्रांसफ़र करते हैं और देन मेजर करते हैं कि कितना आपका प्रेसिपिटेशन हो। मगर रिकॉर्डिंग रेन गेज में ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्टली एक ग्राफ मिलता है। जो ग्राफ होता है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मीन्स, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मीन्स सेंटीमीटर पर आवर, यानी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ वर्सेस टाइम का ग्राफ देता है, जिसमें हम डायरेक्टली नोट डाउन कर सके कि पर्टिकुलर टाइम में आपका कितना रेनफॉल हुआ, यानी कितना डेप्थ ऑफ वाटर आपका स्टोर हुआ। ओके, तो फर्स्ट है उसमें वेटनिंग टाइप रेन गेज। सो इन दिस टाइप ऑफ रेन गेज when a certain weight of rainfall is collected in a tank which rests on a spring lever balance, it makes a pen to a move on a chart wrapped round a clock driven drum, and the rotation of the drum sets the time scale while the vertical motion of the pen records the cumulative precipitation. Okay, इसमें क्या होता है कि आपका जो precipitation है वो डायरेक्टली हम ये जो कैच बकेट है और आपकी जो बकेट है इसमें हम स्टोर करते हैं। जैसे जैसे आपका वाटर लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका वेट भी इंक्रीज़ होगा। वेट इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो आपकी स्प्रिंग लीवर आर्म है वो मूव करेगा और उसके मूवमेंट की वजह से आपका जो रिवॉल्विंग ड्रम में जो ग्राफ पेपर है उस पर आपका ग्राफ मिल जाएगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका कितना रेनफॉल मिला। ओके, next tipping bucket rain gauge. So the tipping bucket type rain gauge consists of two small buckets. Okay, these two small buckets placed below the funnel and fitted in a 30 centimeter diameter of receiver. Okay, so from this figure you can see this is your receiver, this is your funnel, this is your tipping bucket. Okay, so this bucket are designed that when 0.25 mm of rainfall collected in one bucket, it tips off and empty its water into a measuring tube below it. Okay, and at the same time the other buckets is brought under the funnel, and the tipping of the bucket actuate an electric circuit which causes a pen to make a mark on a record sheet which mounted on a clock driven revolving drum. Next, float type rain gauge. So the working of a float type or siphon type rain gauge is similar to the wading bucket type rain gauge. In this rain gauge, a funnel receives the rainwater which is collected in this container. Okay, a float is provided at the bottom of the float chamber, and the float is raised as the water level rises in the container, and its movement being recorded by a pen moving on a recording drum actuate by a clock work. When the water level in the float chamber rises so that the float touches the top of this container, the siphon comes into the operation and release the water, thus all the water in the box is drained out. Okay, so this type of gauge is used by a IMD. IMD means Indian Meteorological Department. So float type rain gauge में क्या है कि इस funnel के थ्रू हम रेनफॉल रिसीव करते हैं और ये रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन आपका इस कंटेनर में स्टॉप होता है। जैसे जैसे वाटर लेवल राइज करता है वैसे वैसे आपका फ्लोट आपका रेज करता है, और जैसे ही ये फ्लोट आपका इस सरफेस पे टच करता है आपका ये जो साइफन है ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है और अपना साइफन के थ्रू वाटर रिलीज़ करता है। मगर जैसे जैसे आपका फ्लोट ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, आपका ये जो पेंसिल आर्म है मूव करता है और जो आपका रोटेटिंग ड्रम है उस पर ग्राफ बनता है, और दिस टाइप ऑफ रेन गेज इज मोस्टली यूज बाय। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल ओवर एन एरिया। ओके, तो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मेज़रमेंट करने के लिए रेनफॉल के। ओके, अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, सो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल ओवर एन एरिया।
So the depth of rainfall measured by a rain gauge is valid for that rain gauge station and its immediate vicinity. Over a large area like watershed or catchment of a stream, there will be several such stations, and the average depth of rainfall over the entire area can be estimated by one of the following method: arithmetic mean method, Thiessen polygon method, and last one is isohydal method. So first of all, arithmetic mean method. This is the simplest method in which average depth of rainfall is obtained, the sum of the depth of rainfall divided by number of the rain gauge स्टेशन. ओके, तो अर्थमेटिक मीन मेथड आपका सबसे सिंपल मेथड है टू फाइंडिंग आउट द एवरेज रेनफॉल ओवर एन एरिया एंड ओवर द कैचमेंट एरिया. ओके, इसमें क्या करना है, सिंपली आपके जो रेनफॉल डेप्थ है पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन को, उसमें रेनफॉल डेप्थ को सम को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेन गेज करो तो आपको एवरेज मिल जाएगा. सो हियर इज द क्वेश्चन, पी एवरेज इज इक्वल टू समेशन पी डिवाइडेड बाय एन, वेयर समेशन पी इज द रेनफॉल एट different station and n is the number of rain gauge station. Okay, and this method is suitable if the rain gauge station are uniformly distributed over the entire area and the rainfall variation in the area is not so large. Okay, तो अर्थमेटिक मीन मेथड हम वहाँ पर ही यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके जो रेन गेज स्टेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और जहाँ पे आपका वेरिएशन जो है रेनफॉल का वो बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो. फॉर एग्जांपल कि ये आपका कैचमेंट एरिया और यहाँ पे आपके रेन गेज पॉइंट जो है आपके रेन गेज स्टेशन है. ओके, तो अर्थमेटिक मीन मेथड हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपके जो रेन गेज हैं ओके वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी 50 किलोमीटर के लिए अगर मैं एक रेन गेज लगा रही तो नेक्स्ट 50 किलोमीटर में ही दूसरा रेन गेज स्टेशन आएगा. ओके, और जहाँ पे जो आपका रेनफॉल का वेरिएशन बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल इस एरिया के लिए सपोज 120 सेंटीमीटर या हो तो यहाँ का 125 ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा हो. ओके, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, वहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन मेथड्स यूज़ करते हैं. So here is the example of arithmetic mean method. In this example, they gave you station number. So there are 5 stations, 1, 2, 3, 4, 5, and the rainfall for particular station. So for station 1, the rainfall is 150.4 mm. For station 2, 120.6. For station 3, 110.2. For station 4, 180.8, and for station 5, 142.2. Okay. तो अर्थमेटिक मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, पी एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इज इक्वल टू एन. एन क्या है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन. तो कितने रेन गेज स्टेशन है, 1 2 3 4 5. एंड समेशन पी क्या है, रेनफॉल एट डिफरेंट स्टेशन. तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5. तो यहाँ पे समेशन मिल गया, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, आपको एवरेज रेनफॉल मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज थीसन पॉलीगन मेथड. सो थीसन पॉलीगन मेथड में क्या है, इन दिस मेथड द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड बाय अ ट्रायंगुलर एरिया बाय जॉइनिंग एडजेसेंट ड्रेन गेज स्टेशन विद स्ट्रेट लाइन एज शोन इन दिस फिगर. If a bisector is drawn on each of the line joining adjacent drain gauge station, there will be a number of polygon and each polygon within itself will have only one drain gauge station. Okay. Sorry. So actually this method is better than the arithmetic mean method which gives equal weightage to the all station. Okay. Thiessen polygon method आपके compare to arithmetic mean method ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है क्योंकि इसमें जो है वो पर्टिकुलर एरिया को डिवाइड करता है. थीसन पॉलीगन मेथड में हमें ऐसे एरिया डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके लिए प्रोसीजर है. ओके, तो प्रोसीजर क्या है, सपोज दिस इज़ योर कैचमेंट एरिया एंड यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो रेन गेज स्टेशंस हैं उनको स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है. तो सपोज ये आपका रेन गेज स्टेशन है ए, ये है आपका बी, ये आपका सी, ये है आपका डी. तो फर्स्ट जो आपके रेन गेज स्टेशन है उनको हमें स्ट्रेट लाइन थ्रू कनेक्ट कर देना है इस तरीके से. देन कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
ईच ऑफ दिस लाइन, इन सभी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मीन्स सिंपल सेंस में कहे तो हाफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कट मारना है एंड देन उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमें स्ट्रेट लाइन से फिर से अगेन कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और आफ्टर दैट दे फॉर्म्स अ नंबर ऑफ पॉलीगन। तो ये एक फर्स्ट पॉलीगन हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इसके लिए जो रेन गेज रेनफॉल डेटा देगा वो ए, इस एरिया के लिए रेन गेज बी, इस एरिया के लिए सी और इसके लिए सी। तो ये है आपका थिसन पॉलीगन मेथड। ओके, सो हियर इज द इक्वेशन फॉर थिसन पॉलीगन मेथड, पी एवरेज इज इक्वल टू समीशन पी ए इंटू ए। ओके, summation PA is P1 into A1 plus P2 into A2 plus P3 into A3 plus Pn into An divided by P1 plus A1 plus A2 plus A3 into An. Okay, so here is the example of Thissen polygon method. They gave you station A, B, C, D and area of Thissen polygon, जो आपके polygon form हुए उसका area 45 किलोमीटर स्क्वायर, 28, 30 and 40 and rainfall for a particular रेन गेज स्टेशन 30.8, 34.6, 32.6, 24.6। तो हमारी इक्वेशन क्या है, समीशन पी ए इंटू ए। तो फर्स्ट हमें पी ए फाइंड आउट करना, तो पी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ थिसन पॉलीगन इंटू रेनफॉल। ओके, तो इसको इससे इंटू कर दो, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई, देन इसको इसका किया, इसको इसके साथ किया और इसको इसके साथ एंड देन इसका समीशन। तो इसका समीशन डिवाइड समीशन ऑफ ए इंटू पी, एरिया ऑफ पॉलीगन इंटू रेनफॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ थिसन पॉलीगन। यहाँ से आपको मिल जाएगा एवरेज रेनफॉल। ओके, एमएम में दिया है तो एमएम में, अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में। ओके, नेक्स्ट इज isohide method or isohydal method. So isohides are the contour of equal rainfall and isohydal maps showing contour of equal rainfall represent a more accurate picture of the rainfall distribution over the basin. Okay, तो isohydal method जो है वो एक्चुअली क्या है, कंटूर मैप ऑफ इक्वल रेनफॉल, यानी जो यहाँ पे आपका सेम रेनफॉल होता है, ऑलमोस्ट सेम रेनफॉल, उसका जो कंटूर मैप बनता है उसको हम बोलते हैं आइसोहाइडल मेथड और आइसोहाइड। ओके, तो इसमें क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, फ्रॉम द रेनफॉल वैल्यूज रिकॉर्डेड एट वेरियस रेन गेज स्टेशन प्रिपेयर द आइसोहाइडल मैप फॉर द रेनफॉल ओवर द एरिया, देन मेजर द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू सक्सेसिव आइसोहाइड। ओके, दो सक्सेसिव आइसोहाइड के बीच का जो एरिया उसको मेजर करें, देन मल्टीप्लाई ईच ऑफ दिस एरिया बाय द एवरेज रेनफॉल। जो आपका एरिया है उसको हम एवरेज रेनफॉल के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड देन एवरेज रेनफॉल इज कंप्यूटेड बाय दिस इक्वेशन, पी एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया इनटू एवरेज ऑफ द रेनफॉल डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, इसमें कैसा है कि आइसोहाइडल मेथड क्या है, कंटूर मैप ऑफ अ इक्वल रेनफॉल। तो दिस इज योर कैचमेंट एरिया, यहाँ पे आपका सपोज एक्स रेनफॉल हो रहा है, तो दूसरा जहाँ पे भी एक्स रेनफॉल हो उसको हम कनेक्ट कर दें, यानी कंटूर ऑफ अ इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल का जो कंटूर मैप बनता है उसे हम बोलते हैं आइसोहाइडल। सपोज यहाँ पे आपका वाई रेनफॉल है, कहीं और पॉइंट पे आपका है वाई रेन, तो इस तरीके से यहाँ पे सपोज जेड है, तो सो आइसोहाइड्स और आइसोहाइडल आर द कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। ओके, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका रेनफॉल है वो 10 है, तो दूसरा 10 जहाँ पे है उसको हमने इसे लाइन से कनेक्ट कर दिया, देन 11 एंड देन 11। ओके, एंड देन इसके एरिया को हम एवरेज रेनफॉल से मल्टीप्लाई करके अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें पी एवरेज मिल जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ आइसोहाइडल, तो दे गेव यू isohides यानी rainfall, isohide means they gave you a rainfall in centimeters, so 9, 10, 11, 12, 13, 40 and then area between the isohides, उसके बीच का एरिया है 22, 80, 105, 98, 78, 16 एंड फिर हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है एवरेज रेनफॉल। तो एवरेज रेनफॉल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 9.5। देन सेकेंड वन के लिए 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2,
तो 10.5. देन थर्ड वन के लिए 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, अगेन सेम 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड नेक्स्ट 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 13.5. मगर नेक्स्ट आपको आइसोहाइट यानी रेनफॉल नहीं दिया है, तो हम अजम्पशंस मार रहे हैं कि नेक्स्ट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो रहा है, डेप्थ पे हो रहा है, तो हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं 15. तो 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 होगा आपका 14.5. ओके, तो इस तरीके से आपको एवरेज रेनफॉल फाइंड आउट करना है. देन एवरेज रेनफॉल को आपको एरिया के साथ इनटू कर देना है. ओके, तो 9.5 इंटू 22 209, 80 इंटू 10.5 840. देन इसका समीशन एंड इसके समीशन को हम डिवाइड कर दे तो आपको मिल जाएगा पी एवरेज. ओके, हियर इज योर आंसर 11.95 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिमम नंबर ऑफ rain gauge. So static has been used to determining the optimum number of rain gauge station required to be installed in a given catchment area. The basic behind such statistical consideration is that a certain number of rain gauge stations are required to give average rainfall with a certain percentage of error. Okay, if the allowable percentage error is more, lesser number of gauge would be required. Okay, so statics यूज़ करके हमने डिटरमाइन किया है कि एक पर्टिकुलर रेन गेज या पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए कितने नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायरमेंट है. अगर हम उस एरर को लिमिटेड कर दे तो हमें नंबर ऑफ रेन गेज ज़्यादा रिक्वायर, मगर अगर हमारा परसेंटेज ऑफ एरर ज़्यादा है, if the allowable percentage error is more, so lesser number of rain gauge would be required. So based on this statistical principle, the optimum number of rain gauge can be determined by this equation, n is equal to cv divided by e का whole square. Okay, so usually e is considered 10%. Okay, e क्या है आपका allowable percentage error in estimation of mean rainfall. Okay, optimum number of rain gauge method हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो percentage of error है एवरेज एनुअल रेनफॉल का, उसको हम एकदम मिनिमम करें, मैक्सिमम 10%. ओके, इसलिए हमें पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए नंबर ऑफ रेन गेज में भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ रेन गेज डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ एरर इंक्रीज़ हो जाएगा. ओके, तो हमारा अगर हमें परसेंटेज ऑफ एरर डिक्रीज़ करना है तो मे बी किसी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए हमें नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन और रिक्वायर्ड, और वो कितने रिक्वायर्ड और होंगे वो हम इस इक्वेशंस के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं. एन इज इक्वल, तो वेयर एन इज़ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, यानी और कितने रेन गेज स्टेशन रिक्वायरमेंट है. CV इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल वैल्यूज ऑफ द एक्सिस्टिंग रेन गेज स्टेशन, एंड E इज अलाउबल डिग्री ऑफ परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ बेसिन मीन रेनफॉल. ओके, जिसको हमने लिमिटेड किया है 10%. ओके, तो प्रोसीजर है स्टेप 1, कैलकुलेट द मीन रेनफॉल. फर्स्ट हमें मीन रेनफॉल कैलकुलेट करना, उसके लिए इक्वेशन है P बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ P डिवाइडेड बाय N, वेयर P इज द टोटल रेनफॉल एट डिफरेंट रेन गेज स्टेशन एंड N इज द नंबर ऑफ रेन गेज एग्जिस्टिंग. ओके, नेक्स्ट स्टेप 2, कैलकुलेट द मीन ऑफ स्क्वायर. ओके, सो उसके लिए इक्वेशन है P बार स्क्वायर समीशन ऑफ P स्क्वायर डिवाइडेड बाय N. ओके, तो P आपका अगेन टोटल नंबर ऑफ रेनफॉल एंड N इज अ नंबर ऑफ रेन गेज एग्जिस्टिंग. देन स्टेप 3, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो उसके लिए इक्वेशन ये अंडर होल रूट n माइनस n होल रूट n डिवाइडेड बाय n माइनस 1. यहाँ से P बार स्क्वायर मिल जाएगा आपको और यहाँ पे टोटल रेनफॉल का स्क्वायर. देन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इस इक्वेशन के थ्रू हम वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, where sigma is standard deviation. Okay, and then optimum number of rain gauge हम इस equations के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. okay, यहाँ से मिल गया 149.33 एंड 100 कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगी 25.52. देन ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है CV इंटू ई. परसेंटेज ऑफ एरर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है 10%, पुट कर दो वैल्यूज, आपका आया 7. सो ऑलरेडी आपके कितने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन थे एग्जिस्टिंग 4, और यह क्या बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर अगर हमारा एरर हम मिनिमाइज कर दे 10% तक तो कितने नंबर ऑफ रेन गेज का रिक्वायरमेंट है, टोटल 7. तो 7 में से हमारा जो एग्जिस्टिंग वैल्यू अगर हम उसमें से माइनस कर दें
तो हमें एडिशनल और कितने नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड है, तो 3 नंबर. ओके. Next topic, estimating missing rainfall data. So sometimes it may not be possible to measure the rainfall data at a particular rain gauge station due to some reasons like absence of the observer or instrument failure or any other reason. So in that cases, the prediction of the missing rainfall data can be made with the help of available data of nearby measuring station. ओके. सो ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम आपके पास सभी रेन गेज स्टेशन का डेटा अवेलेबल हो. समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑब्जर्वर की एब्सेंस की वजह से, क्योंकि जो हमारा साइमन रेन गेज है वहाँ पे हमें मैनुअली रीडिंग लेनी पड़ती है, जाके नोट डाउन करना पड़ता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट के फेलियर होने की वजह से समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन का डेटा अवेलेबल ना हो. तो उस टाइम पे अगर आपके पास रेनफॉल डेटा मिसिंग है तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे. तो जो आपके नियर बाई स्टेशन है, नियर बाई रेन गेज स्टेशन है, वहाँ का डेटा यूज़ करके हम इन फॉर्मूलेज के साथ या इस मैथड्स में पुट करके वैल्यूज़ हम मिसिंग रेनफॉल डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो देर आर 4 मैथड यूज फॉर फाइंडिंग आउट द missing rainfall data: arithmetic average method, normal ratio method, inverse distance method, and station year method. So first, arithmetic average method. So according to this method, the missing rainfall of the station is computed by simply arithmetic average of the rainfall at the nearby station. Okay, ये आपका एकदम simplest method है. और इस मेथड में हम क्या सिंपली अर्थमेटिक एवरेज करके हमारा जो नियर बाई के जो रेन गेज स्टेशन है उसका डेटा यूज़ करके हम जिस मिसिंग रेनफॉल डेटा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, ये आपका कैचमेंट एरिया है. सपोज यहाँ पे आपके 5 रेन गेज स्टेशन है. ठीक है. ये आपका बी हो गया, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई. सपोज मेरे पास ई का रेनफॉल डेटा मिसिंग है ड्यू टू सम रीज़न. ओके. इंस्ट्रूमेंट फेलियर की वजह से, एब्सेंस की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से मेरे पास इसका डेटा नहीं है और मुझे यहाँ का रेनफॉल डेटा चाहिए. तो मैं इन सारे स्टेशंस का रेनफॉल डेटा यूज़ करके सिंपल अर्थमेटिक एवरेज करके इस रेन के स्टेशन का फाइंड आउट कर सकती हूँ. ओके. तो उसके लिए इक्वेशन है Px इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn डिवाइडेड बाय n. बट इन मिसिंग रेनफॉल डेटा n इज़ अ इंडेक्स स्टेशन. ओके. जो आपके नियर बाय स्टेशंस हैं जिनको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडेक्स स्टेशन, और यह आपका मिसिंग स्टेशन. ओके. सो इक्वेशन है Px इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय Pn डिवाइडेड बाय n. n इज़ अ इंडेक्स स्टेशन और नियर बाय स्टेशन. ओके. n क्या है आपका? इंडेक्स स्टेशन और नियर बाय स्टेशन, जिसको हम यूज़ करके जो मिसिंग डेटा है उसको फाइंड आउट यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका इनवर्स distance method. So in this method, weight for each samples are inversely proportional to its distance from the point being estimated. Okay, here is the equation of inverse. Next, normal ratio method. So when the normal annual rainfall of any of the selected station is more than 10% of that station with missing record, simply average method cannot be used. Then the method to be adopted consists of weighting the rainfall value by the ratio of the normal annual rainfall values. Okay. तो this method is used when जो आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल है इंडेक्स स्टेशन का और जो आपका मिसिंग रेनफॉल है वो आपका मोर देन 10% के ज़्यादा हो, तब हम नॉर्मल रेशियो मेथड यूज़ करें. मगर अंडर 10% हो तो हम सिंपल अर्थमेटिक एवरेज मेथड यूज़ करते हैं. मगर अगर मोर देन 10% है उस कंडीशन में हम नॉर्मल रेशियो मेथड यूज़ करते हैं. सो इस मेथड के लिए इक्वेशन ये है Px इज इक्वल टू nx डिवाइडेड बाय n, P1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय n2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय n3, वेयर P1, P2, P3 इज द रेनफॉल एट द इंडेक्स स्टेशन. ओके. यानी आपके जो नियर बाय स्टेशन है जिसका डेटा हम मिसिंग रेनफॉल डेटा फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका रेनफॉल. NX इज़ द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मिसिंग स्टेशन. आपका जो मिसिंग स्टेशन है उसका एनुअल एवरेज रेनफॉल है. N1, N2, N3 इज़ द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडेक्स स्टेशन एंड N इज़ द नंबर ऑफ इंडेक्स स्टेशन.
So is the example. So assume that the rainfall is not known at the station D. The normal precipitation of 3 neighboring rain gauge station are as follow. Okay, आपको क्वेश्चन में 3 स्टेशन दिए हैं A B C D, प्रिसिपिटेशन दिया है यानी नॉर्मल रेनफॉल दिया है. फॉर स्टेशन A है 25, फॉर स्टेशन B 10, फॉर स्टेशन C 25, D का मिसिंग है, और नॉर्मल एनुअल प्रिसिपिटेशन चारों स्टेशन के थे. सो कंप्यूट द रेनफॉल एट दिस पॉइंट यूजिंग सिंपल अर्थमेटिक मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड. ओके, नॉर्मल रेशियो एंड सिंपल अर्थमेटिक मेथड यूज़ करके हमें डी स्टेशन का रेनफॉल, मिसिंग रेनफॉल डेटा फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट सिंपल अर्थमेटिक मेथड सिंपल है. डी स्टेशन का तो फाइंड आउट करना है. सो पी डी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज द इंडेक्स स्टेशन. तो इंडेक्स स्टेशन क्या है आपके? नियर बाई स्टेशन. तो नियर बाई स्टेशन कितने? 1 2 3. ओके, तो 25 प्लस 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो आपको स्टेशन डी का रेनफॉल डेटा मिल गया, वो है 20 सेंटीमीटर. अब कंप्यूट द रेनफॉल यूजिंग नॉर्मल रेशियो मेथड. हमें नॉर्मल रेशियो मेथड्स के थ्रू फाइंड आउट. इक्वेशन है नॉर्मल रेशियो मेथड का, पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स डिवाइड बाय एन, पी वन प्लस एन वन प्लस पी टू डिवाइड बाय एन टू प्लस पी थ्री डिवाइड बाय एन थ्री, वेयर पी एक्स इज द मिसिंग रेनफॉल डेटा. तो इक्वेशन को मॉडिफाई किया, पी डी इज इक्वल टू एन डी एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मिसिंग स्टेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडेक्स स्टेशन, फिर rainfall at station A, rainfall at station B, rainfall at station D divided by average annual rainfall of index station A, B and C. Put the values on this equation and find out the average rainfall at missing station. Okay, values put कर दो. Okay, और आपको normal ratio के through average rainfall मिल जाएगा. Next or last method, station year method. So in this method, or this method is used to determine recurrence interval which are longer and hence cannot be computed from the available record of a single station. Okay, so this method is used for finding out the return period of a rainfall or cannot be computed from the available data of a single station. Okay, what is recurrence interval or return period? So it is the interval in a year for occurrence of the event of the same magnitude and the reciprocal of the frequency. Okay, तो मीन्स कोई एक मैग्नीट्यूड के रेनफॉल को आने में कितने साल लगे, लाइक उसका रिटर्न पीरियड क्या है, लाइक 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर, उसको हम बोलते हैं रिकरेंस इंटरवल और रिटर्न पीरियड. तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम स्टेशन ईयर मेथड यूज़ करते हैं. So all the records which are available from the various stations situated in a meteorological homogeneous area are combined together so as to represent the record of an imaginary representation station called the station year, and this method is thus based upon the assumption that all the stations situated in a meteorological homogeneous area will experience similar rainfall frequency, and that if these stations are widely enough separated, the total rainfall experienced at all of the station will be similar to the experience of any one station. Okay, so the missing record at a station in a particular area may be found by the ratio of average or by a graphical comparison. Okay, so station area method हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें रिटर्न पीरियड लाइक रेकरेंस इंटरवल फाइंड आउट करना हो, उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं. और जो स्टेशन यानी जो कैचमेंट एरिया उसमें आपके जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्लाइमेटोलॉजिकली सिमिलर हो या होमोजीनियस हो, उस कंडीशन में हम स्टेशन ईयर मेथड यूज़ करते हैं. और इसमें हम रेशियो एवरेज मेथड से अपना वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल इन अ सर्टेन एरिया ईयर द टोटल रेनफॉल ऑफ स्टेशन इज 75 सेंटीमीटर एंड फॉर द नेबरिंग स्टेशन बी इज there is no record. But if the average annual rainfall at a station A and B are 70 centimeter and 80 centimeter respectively, the missing year rainfall at B can be found by the simple proportion. Okay, so 75 is the rainfall, total rainfall at station A, and 70 centimeter is the average annual rainfall at station B. Okay, and हमें find out करना है rainfall at station B, and it is the एवरेज एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन भी सिंपल प्रोपोर्शनिंग करके हम पी बी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी टोटल रेनफॉल एट स्टेशन बी. बट
note this result may again be checked with a reference to other. Next topic, representation of rainfall data. So there are three methods which is used to represent the rainfall data with respect to a time is hydrograph method, mass curve of rainfall method, and point rainfall method. So first of all, what is hydrograph? So hydrograph is a bar graph showing the rainfall intensity versus time. Okay, it is useful to determine the maximum intensity of rainfall during a particular storm as if it required for designing of hydraulic structure or design of culverts. Okay, so hydrograph का it is a bar graph between the rainfall intensity versus time और rainfall intensity के बीच में जो bar graph है उसे हम बोलते हैं हाइटोग्राफ. ओके, और व्हाट इज रेनफॉल इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका कितना डेप्थ ऑफ वाटर, कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ, तो हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड वर्सेस टाइम. तो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी कि फर्स्ट 30 मिनट में आपका रेनफॉल की डेंसिटी इंटेंसिटी कितना था 3.5 पर सेंटीमीटर पर आवर, देन 60 मिनट्स के लिए देन 90. ओके, तो यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका कितना रेनफॉल हुआ वो फाइंड आउट कर. मास कर्व, सो मास कर्व इज अ प्लॉट between a cumulative depth of rainfall or accumulated precipitation against time. Okay, यानी cumulative precipitation या cumulative depth of rainfall और versus time के बीच का जो plot है उसको हम बोलते हैं mass curve of rainfall. Okay, so from the mass curve the total depth of rainfall and intensity of rainfall at any instant of time can be found. ओके, मास कर्व से हम कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड या कोई किसी इंस्टेंट टाइम के लिए हम कितना डेप्थ ऑफ वाटर या टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो फ्रॉम दिस फिगर और फ्रॉम दिस ग्राफ शोज दैट द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 0 to this point is the first period of rainfall. Okay, this mass curve of rainfall shows the डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ फ्रॉम. ओके, तो 0 से जो ये पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट पीरियड ऑफ रेनफॉल. फिर दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट देयर नो रेनफॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देयरफॉर दिस curve shows the second period of rainfall while this point again represent that there is no rainfall. Okay, so basically mass curve क्या represent करता है कि आपका कितने टाइम तक आपका रेनफॉल हुआ, देन फिर आपका स्टॉप, देयर इज नो रेनफॉल, देन फिर से सेकंड स्टॉर्म. तो इस फिगर से आप देखा फर्स्ट स्टॉर्म, और फर्स्ट स्टॉर्म में आपका रेनफॉल का डेप्थ यानी क्यूमुलेटिव डेप्थ कितना था वाटर का 16 mm. देन दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट देयर इज नो रेनफॉल, देन अगेन से जो स्लोप पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है आपका सेकेंड पीरियड ऑफ रेनफॉल. ओके, और उसमें जो आपका वाटर का डेप्थ है वो है 34 सेंटीमीटर. देन फिर से स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स देयर इज नो रेनफॉल. ओके, मास क्या रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका कितना रेनफॉल हुआ. ओके, क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम. ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट rainfall method. So the rainfall during a given time interval measured in a rain gauge or an estimate of the amount which might have been measured at a given point. Okay, so the rainfall data of a station is known as point. कोई particular rain gauge station पे जो एक टाइम पीरियड के लिए टाइम इंटरवल पे जो रेनफॉल का हम रिकॉर्डिंग लेते हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट रेनफॉल डेटा. Okay, this data can be represented as a daily, weekly, monthly, seasonally or annual values. Next, analysis of rainfall data. So rainfall during a year or season consists of a several storms and the characteristic of rainstorm or rainfall are represented by these this term. First, intensity. So a rainfall at a place can be completely described by its intensity, its duration and frequency. Okay, so the intensity of rain is the rate at which it is falling. Okay, intensity मतलब क्या है कि आपका किस रेट से रेन हो रहा है, एंड ड्यूरेशन इज द टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड का, लाइक वो आपका मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, एंड ईयर. ओके, for which it is falling, duration represent the
time for which it is falling with that given intensity, and frequency is the number of time it's fall, कितनी बार आपका सेम इंटेंसिटी का रेनफॉल हुआ उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी मीन्स once in a 5 year और once in a 10 20 40 60 और 100। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरा रेनफॉल इस बार 100 सेंटीमीटर हो, तो आपको 100 सेंटीमीटर 5 ईयर्स में कितनी बार हुआ उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या 5 ईयर की 5 साल में एक बार आ रहा है, 10 साल में एक बार, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट इज एरियल एक्सटेंट मीन्स एरिया ओवर विच इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका जो रेनफॉल है उस कितने एरिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट, डबल मास कर्व। तो डबल मास कर्व इज अ टेक्निक to use for checking the consistency of rainfall record for a particular rain gauge station. If the condition at a particular rain gauge station change significantly during the period of record, the rainfall data of that station is inconsistent. Okay, double mass curve same है आपका mass curve जैसा ही, it's a graph ओके मगर डबल मास का एक टेक्निक है जो हम रेनफॉल डेटा की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं कि आपका जो आपने जो रेनफॉल का डेटा लिया वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके ठीक है, फ्रिक्वेंटली कॉजेज ऑफ कंसिस्टेंसी क्या हो सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ रेन गेज टू अ न्यू लोकेशन। ओके आपका जो ऑलरेडी ये सपोज कैचमेंट एरिया है और यहाँ पे आपका पहले रेन गेज स्टेशन था मगर अभी मैं उसको न्यू लोकेशन में चेंज कर, इसकी वजह से आप जो रेनफॉल डेटा रिकॉर्ड करो उसमें इनकन्सिस्टेंसी है। ओके दूसरा कॉजेज क्या हो सकता है, चेंज इन द इकोसिस्टम ड्यू टू अ कैलामिटीज़। ओके आपकी कैलामिटी की वजह से आपका चेंजेस हो, या फिर आपका जो ऑब्जर्वर है, या फिर ऑब्जर्वर ऑकरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर फ्रॉम अ सर्टेन, लाइक पर्सन टू पर्सन भी डिफर करेगा। लाइक कोई पर्सन मॉर्निंग में ले रहा है, कोई पर्सन इवनिंग में ले रहा है, या फिर कोई पर्सन का मेज़र करने का तरीका का दूसरे पर्सन का मेज़र कर, तो ऑब्जर्वेशन के लिए जो पर्सन है उसके वजह से भी इनकन्सिस्टेंसी होने के चांसेस है। एंड ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का फ्रॉम ओल्ड टू न्यू तो उसमें भी आपके रेनफॉल डेटा के रिकॉर्ड में इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। ओके तो डबल मास कर्व क्या इज़ अ टेक्निक टू फाइंडिंग आउट द for checking the consistency of rainfall record for a particular rain gauge station। कोई particular rain gauge station में अगर हमें consistency check करनी हो के लिए हम double mass curve check करते हैं। और inconsistency किस वजह से हो सकती है, तो shifting of rain gauge to a new location, changing in the ecosystem due to calamities, and occurrence of observational error from a certain। Okay, so what is double mass curve techniques? A double mass curve is a graph plotted between the accumulated annual rainfall at a station X, which is test station, versus accumulated annual values of the average of group of base station for various consecutive time period। Okay, so this is the step which used for double mass curve. First, select a group of 5 to 10 base station in the neighborhood of the problem station X। फर्स्ट एग्ज्यूमिंग कि आपका जो स्टेशन है प्रॉब्लम स्टेशन उसको हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं और उसके जो नियर बाय स्टेशन है वो उसको हम बेस स्टेशन बोलते हैं, और उनमें से हम 5 से 10 बेस स्टेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। देन अरेंज द डेटा ऑफ एक्स स्टेशन यानी प्रॉब्लम स्टेशन रेनफॉल and the average of the neighboring station in reverse chronological order from recent to old। Okay, then accumulate the precipitation of station X यानी problem station and the average value of the group base station। Okay, accumulation करना है, cumulative करना है आपका problematic station का और जो हमने base station यूज़ किया उनका। then plot the graph or plot the curve between the problem station versus base station, and to decide break in the slope of the resulting plot is observed that indicates a change in precipitation regime of station X inconsistent, therefore it should be corrected by the factor। Okay, so this is your double mass curve
Okay, it is a plot between the accumulated annual rainfall of X station यानी problem station and accumulated annual rainfall of neighboring station means base station. Okay, कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपकी लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो रही है, मगर जहाँ से ही आपकी ये लाइन ब्रेक हो रही है इट मीन्स यहाँ पे जो आपका रेनफॉल डेटा है उसमें इनकन्सिस्टेंसी यानी एरर है, किसी भी रीज़न से हो सकता है. तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजनरी स्ट्रेट लाइन कनेक्ट ड्रॉ करते हैं एंड देन उस करेक्शन को हम करेक्ट करते हैं दिस फैक्टर से. ओके, सो एम सी इज डिवाइडेड बाय एम ए विच इज़ सी इंटू ए. सी क्या है, this vertical distance for a imaginary line and A is a vertical distance for actual line. Okay, इससे हम अपना करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, देन इस इक्वेशन में पुट करके हम अपना कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं. ओके, वेयर पी एक्स सी इज करेक्टेड प्रेसिपिटेशन एट एनी टाइम पीरियड, पी एक्स इज ओरिजिनल रिकॉर्डेड प्रेसिपिटेशन एट टाइम period and MC is the corrected slope of the double mass curve and MA is the original slope of the mass curve. Okay, so today I'm gonna to stop here. If you have any query or doubt, feel free to ask me. Okay, thank you.